Good morning to all the students of Dr. B.R. Ambedkar Government College, Bilara. Students, as we have been studying poetry for a long time, and today I am going to take another very beautiful poem, Ode to Autumn, written by John Keats. Keats is a romantic poet and he belongs to the young generation of romantic poets. The another poets included in the young generation, Shelley and Robert Byron. And the poets who belong to the old generation include Wordsworth, Coleridge, Robert Southey. The poem that we are going to study today is a very beautiful poem about the nature, especially about the autumn season. That how the autumn plays a very important role in the development of the beauty of the nature, in ripening the fruits. And the Keats, he was born in 1795 and died at the very young age in 1821. His works were published only just for 4 years and he died at a very young age due to tuberculosis. But we remember him through his poems, the beauty, the pictorial qualities that he presented in his poem, and the same we are going to read and study in Ode to Autumn. First of all, I am going to recite the whole poem, then I will describe it step by step and word by word. Ode to Autumn by John Keats. Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the hedgerows run, to bend with apples and most cottage trees and fill the fruits with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel cells, with a sweet kernel to shed budding more, and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbeamed their clammy cells. Second stanza, who had not seen thee oft amid thy store, sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a greenery floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-ribbed furrow sound asleep, roused with the fume of poppies, while thy hook space the next sweat and all its twined flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across brook, or by a cider press with patient look, thou watchest the last oozing hours by hours. Where are the songs of spring? Ah, where are they? Think not of them. Thou hast thy music too, while barred clouds bloom the soft dying day, and touch the stable plains with rosy hue. Then in a wailful choir the small gnats mourn among the river shallows borne aloft, or sinking as the light wind leaves or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly bourne, as crickets sing and how with treble soft, the red-breast whistles from a garden cloft, and gathering swallows twitter in the skies. I recited the whole poem so that you can understand that how to pronounce the words used in this poem. Now I am going to explain it word to word. This poem contains total 3 stanzas. In the first stanza, we shall study how the autumn plays a very important role in the development of fruits. In the second stanza, we shall study that how the autumn is presented through the imagery of 4 women, and in the third stanza, we shall give the due respect to autumn. So students, I begin. Season of mist and mellow fruitfulness. Autumn is a season of mist, क्योंकि मिस्ट मतलब चारों तरफ मिस्ट छा जाती है, धुंध छा जाती है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो पके हुए, क्योंकि ऑटम सीजन के अंदर सारे फ्रूट सारे फल पक जाते हैं, इसीलिए इसको सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस कहा गया है। फ्रूटफुलनेस मतलब इस मौसम में चारों तरफ पेड़ पौधे फ्रूट से भर जाते हैं, लबालब हो जाते हैं, दैट इज वाई इट इज द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। Close bosom friend of maturing sun, and autumn is
considered as the close bosom friend of the maturing sun. Here maturing sun means when the autumn conspires with sun to make the fruits mature. जब fruit mature हो जाते हैं autumn के अंदर, तो sun क्या करता है? sun makes the fruits mature. सूरज और ओटम की सीजन के अंदर फल फ्रूट जो है वो पक जाते हैं, इसीलिए द सन इज कॉल्ड मैच्योरिंग सन. कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस द ओटम इन द कंपनी ऑफ सन मेक्स इट्स एफर्ट हाउ टू लोड द ट्रीज विथ फ्रूट्स. पेड़ों को फलों से कैसे लबालब करना है, उनको उनके ऊपर कैसे जो है फल पकाने हैं, ये काम ओटम सीजन करती है इन कंपनी विद द सन. दैट्स वाई दे कंस्पायर. मानो वो षड्यंत्र रच रहे हो. कंस्पायर मीन्स टू प्लॉट. विथ फ्रूट द वाइन दैट राउंड द थैच यूज रन. वाइन, जो अंगूर की लता होती है उसको वाइन कहा जाता है. सो इन द ऑटम सीजन व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट पीक, इट इज वार्म, देन व्हाट डू दे डू? They load the wines with grapes. जो वाइन होती हैं, ग्रेप्स की लता होती है, उसको अंगूर से भर देते हैं. तो ये विंटर के अंदर नहीं होता. ये सब फल फ्रूट किस मौसम में पकते हैं? ऑटम सीजन में पकते हैं. इसीलिए ऑटम सीजन को अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस कहा गया है. और इस काम में उसकी मदद कौन करता है? सन, सूरज उसकी मदद करता है. राउंड द हेस्ट ईव्स, जो अंगूर की लता है वो थैच ईव्स के चारों तरफ है. थैच ईव्स का मतलब एक कुटिया है जिसके ऊपर घास फूस की छत बनी हुई है, उसके चारों तरफ ये अंगूर की लता फैली हुई है. और ईव्स का मतलब जो घास फूस की छत होती है कुटिया के ऊपर, और जो उसका कुछ हिस्सा दीवार के बाहर निकला हुआ होता है जैसे बालकनी होती है, इन द सेम वे इसको ईव्स कहा गया है. To band with apples. So what does the autumn do in the company of sun? It loads the trees with fruits, it loads the vines with grapes, it loads the trees with apples. The apple trees which were bare in the winter season, when the spring comes, these fruits begin to grow. But when these trees ripen in the season of autumn, so autumn ripens all the fruits of the tree, whether it is the grapes vine or the apple tree. And who helps the autumn in its task? The sun. Because when the sun is bright, when it throws its light, all the fruits that were raw, they begin to ripen. वो पक जाते हैं और खाने के लिए तैयार हो जाते हैं. एंड फिल द फ्रूट्स विद राइपनेस. राइपनेस यानी जो पक जाता है, फ्रूट पक जाते हैं. टू द कोर. टू द कोर का मतलब टू द इनर मोस्ट पार्ट, अंदर तक. जो फ्रूट हैं वो ऑटम और सूरज की वजह से अंदर तक पक जाते हैं. कई बार कुछ फ्रूट्स होते हैं ना, अपन जब बनाना वगैरह खरीद कर लाते हैं तो अंदर से कुछ कच्चे रह जाते हैं. लेकिन व्हेन द ऑटम विद द हेल्प ऑफ सन मेक्स इट्स एफर्ट टू राइपन द फ्रूट्स, दे गेट राइपनेस टू द कोर, टू द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट. टू स्वेल द गोड. स्वेल मीन्स फूलना. एंड व्हाट दे डू? जब फल कच्चा होता है तो छोटा सा होता है, श्रिंक होता है, मुरझाया हुआ. बट व्हेन इन द ऑटम सीजन दे गेट द ड्यू लाइट एंड द all the important materials that they need to grow, then they begin to swell. And the gourd means, the gourd are called those fruits that are egg shaped, जो अंडे के आकार के होते हैं. और हमारे यहाँ important जिसको हम हिंदी में लौकी वगैरह कहते हैं, they are called gourd. So जो ये लौकी वगैरह है वो फ्रूट भी, वो सब्जियां भी ऑटम सीजन में जो पहले छोटी सी थी, आकार छोटा था, उनका आकार बड़ा होने लगता है, वो आकार में फूलने लगते हैं. एंड प्लम द हेजल सेल. प्लम का मतलब ही फूलना, भरा हुआ होना, शरीर में मोटा ताजा होना. तो हेजल सेल होते हैं. इट्स जस्ट लाइक द अखरोट फ्रूट. हेजल इज इन द सेम
way, it is considered a fruit which has the hard covering around it but had soft kernel inside it. In the same way as we find the chestnut, जैसे अखरोट वगैरह होता है। तो चाहे एप्पल के पेड़ हो, चाहे लौकी हो, चाहे हेजल सेल हो, सेल उसकी बाहरी कवरिंग हो, चाहे अंगूर की लताएं हो, सब कुछ किस मौसम में पकते हैं? ओटम के मौसम में पकते हैं। इसीलिए ओटम इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। विद अ स्वीट कर्नल, कर्नल इज द सॉफ्ट पार्ट व्हेन वी ब्रेक द अखरोट ओपन, जब अखरोट को तोड़ देते हैं, देन व्हाट वी गेट? द सॉफ्ट मटीरियल दैट वी ईट। उस सॉफ्ट मटीरियल को कर्नल कहा जाता है, जिसको हिंदी में सार कहते हैं, या सार का मतलब जो हम यूज करते हैं टू ईट। टू सेट बडिंग मोर, और ऑटम सीजन के अंदर कलियां खिलती जाती है, बडिंग मोर, कलियां एक के बाद दूसरी खिलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, कलियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और यही कलियां बड़ी होकर फूलों का रूप लेते हैं, फिर उनके ऊपर फ्रूट लगते हैं और वो फ्रूट हमारे लिए खाने के काम आते हैं। And still more, later flowers for the bees and the birds that bloom in the autumn season. Later they transform into flowers, and these flowers are used for the bees to suck sweetness, to suck honey from these flowers. Until they think warm days will never cease, and these birds, these flowers in the large amount, in the large quantity, that the bees that suck the honey from these flowers, they think that there is no end to such flowers, means the autumn is not going to end. They think that, oh, how many flowers are there, how much honey they contain, we are not able to get all the honey of the flowers present in the autumn season. And they seem to be confusing that whether the autumn is going to end or not. They think that autumn will never end, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इतने सारे फ्रूट हैं, वो रस चूसते चूसते ही थक जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये ऑटम कभी खत्म नहीं होगी। Until they think warm days will never cease, for summer, summer means ग्रीष्म ऋतु, overbrimmed means पूरा भर जाना, their clammy cell, clammy means sticky cell, sticky or wet, ये these clammy cell is the cavity in beehives that used for collecting honey. बीज के अंदर जो है कुछ केविटी होती है, सेल्स, जिसके अंदर बीज अपना जो हनी कलेक्ट करती हैं उसको सेल कहा जाता है। तो जो मधुमक्खियां हैं वो घूमते फिरते फूलों से रस सींचते हुए उनके शरीर की जो सेल है वो पूरी भर जाती हैं और वो चिपचिपी हो जाती है, इसीलिए इसको क्लेमी सेल्स कहा गया है। तो उनके शरीर की सेल पूरी भर गई हैं सन हनी से, लेकिन फूल कम नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है ये गर्म दिन, ये ऑटम सीजन कभी भी खत्म नहीं होगी। So students, in the first stanza, as this poem contains total 3 stanza, the first stanza tell us about how the autumn, with the help of sun, makes effort to ripen all the fruits of all kind of tree, whether it is grapes vine or apple tree, gourd or some other hazel cells, and it also provide bees with the honey in the form of flowers. Now we are going to study the second stanza. Who had not seen thee? Thee means you. Oft means often. Amid यानी बीच में, thy store. In this stanza, the poet symbolizes the autumn through 4 kinds of women, and these 4 kinds of women are given different name according to their occupation. So autumn is presented in 4 forms in the imagery of 4 women, characterized by the work they do. So author says, the poet says that who had not seen thee amid thy store, means everyone has seen you amid the store, amid the greenery. खेतों में, खलियान में ऑटम को किसने नहीं देखा? सबने देखा है, बस उसका रूप बदल गया है,
किस किस रूप में देखा है? सम टाइम, कभी कभार, whoever seeks abroad, abroad यानी फॉरेन, may find, कई बार जो व्यक्ति अपने शहर से बाहर जाता है, या अब्रॉड का मतलब खुली जगह में, खेतों में जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है, may find thee sitting careless on a granary floor, तो जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो वो देखता है कि जो अनाज घर है, अनाज घर, ग्रेनरी अनाज घर होता है जहां पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है, वहां पर the sitting careless on a granary floor, the hair soft lifted by the winnowing wind. winnowing wind, विनो का मतलब होता है जब अपने यहाँ छाजले वगैरह में गेहूं वगैरह डालते हैं और उसको ऐसे हिलाकर गेहूं को नीचे गिराते हैं ताकि हवा से उसका कचरा उड़ जाए और गेहूं एक जगह पर रह जाए, वो प्रक्रिया विनो कहलाती है. मीन्स टू फैन द ग्रेन to get rid of its chaff is called winnowing. So the first form of autumn is given as winnower. जब महिलाएं गेहूं को साफ करती हैं हवा से ताकि गेहूं का कचरा अलग हो जाए, तो उसको ओटम रूप दिया गया है. मीन्स हियर ओटम इज प्रेजेंटेड एज अ विनोवर हु फेंस द ग्रेन टू गेट रिड ऑफ इट्स chaff. So the first form given to autumn is of winnower, where the she is sitting with her soft hair uplifted. तो अनाज घर के पास जहां पर वो गेहूं को साफ कर रही है ओटम, एक विमेन के रूप में, वुमन के रूप में वहां वो बैठी हुई है और उसके जो सॉफ्ट बाल हैं वो हवा में उड़ रहे हैं. तो पहली इमेजरी विनोवर की है, ध्यान रखिए, मैं यहां लिख देता हूं. तो गेहूं का कचरा अलग करना ताकि प्योर गेहूं एक साथ रह जाए. और ऑन हाफ रिप्ड फर्रो साउंड अस्लीप ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पोपीज. रीप का मतलब होता है काटना, कटाई करना. फर्रो, फर्रो का मतलब जो हल चलाने से खेतों में नाली बन जाती है उसको फर्रो कहा जाता है. साउंड अस्लीप ड्राउज्ड विद द fume of poppies while thy hook spares the next swath. swath का मतलब जो बंडल होता है, रो, हम यहाँ रो कह सकते हैं, पंक्ति. and all its twined flowers. और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो क्या देखता है कि खेतों के अंदर एक महिला फसल काट रही है, रीप कर रही है, और वो महिला और कोई नहीं है, ओटम है. क्योंकि फसल किस महीने में काटते हैं? ओटम के महीने में काटते हैं. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फसल को, गेहूं को साफ करने का काम कौन करती है? ओटम. देयरफॉर शी इज गिवन द नेम ऑफ विनोवर. देन फसल कौन काटता है, फसल कौन रीप करता है? ओटम करती है. देयरफॉर द सेकेंड इमेजरी गिवन टू ओटम इज ऑफ रीपर. तो सेकेंड इमेजरी हम इसमें रीपर कहेंगे. तो विनोवर, गेहूं छानना हो गया, साफ करना. सेकंड गेहूं काटना हो गया. तो पहले रूप में ओटम गेहूं को साफ कर रही है, दूसरे में वो फसल काट रही है. देयरफॉर द सेकंड इमेजरी इज ऑफ रीपर. एंड व्हेन शी रीप्स द कॉर्न इन द फील्ड, देयर आर सम प्लांट्स ऑफ पोपीज. पोपीज जिसको हम हिंदी में ओपियम कहते, अफीम कहते हैं. तो जब अफीम की खुशबू हवा में फैलती है तो वो एकदम मादक पदार्थ होता है जिसको खाने से या उसका रस पीने से या उसकी सुगंध से आदमी के अंदर बेहोशी टाइप आने लगती है. तो इसीलिए उसकी सुगंध से फसलों में कहीं कहीं पोपीज के प्लांट्स है जिनकी खुशबू से ओटम, जो औरत जो काटने का काम कर रही है, जिसको ओटम का रूप दिया गया है, जब उसके नाक तक वो स्मेल जाती है तो वो बेहोशी की हालत में होती हैं और जहाँ फसल काट रही होती हैं वहीं पर वो सो जाती हैं. इसीलिए इसमें कहा गया है कि साउंड अस्लीप. जब कोई व्यक्ति खेतों में जाता है तो उसको सोया हुआ पाते हैं, वहाँ वो फसल काट रही होती है. And she is feeling sleepy. Why? Because of the fume of poppies. अफीम की खुशबू के कारण, स्मेल के कारण. While thy hook,
हुक का मतलब वो जो जिसको हम दांतली वगैरह कहते हैं, जिससे फसल काटते हैं, दैट इज कॉल्ड हुक। और उसका जो हुक है वो हाथ में ही पड़ा हुआ है, फसल काटते काटते वो लेट गई है। स्पेयर, स्पेयर का मतलब बचाना। द नेक्स्ट स्वॉथ, स्वॉथ यानी रो, पंक्ति, और वो अफीम की स्मेल के कारण सो जाती है, इसीलिए फसल की अगली पंक्ति वो नहीं काट पाती है, और जिस जगह पर वो पंक्ति काट रही है, फसल काट रही है, वहीं पर सी गेट्स अस्लीप। एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और फसल के साथ साथ ओपियम के फ्लावर्स भी ट्वाइंड है, इंटरमिंगल्ड है, उसके अंदर उलझे हुए हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और कभी कभी ओटम को हम ग्लीनर के रूप में देखते हैं। द थर्ड फॉर्म गिवन इज ग्लीनर। ग्लीनर यानी इकट्ठा करने वाला, एकत्रित करने वाला, एकत्रित करने वाला, ये काटने वाला, ये गेहूं छानने वाला। फर्स्ट फॉर्म इज ऑफ विनोवर, सेकेंड इज रीफर, एंड थर्ड इज ग्लीनर। इन द ग्लीनर, ग्लीन मीन्स एकत्रित करना। जो पहले ओटम ने गेहूं साफ किए थे, फिर फसल काटी थी, और थर्ड रूप में सेकेंड में जब वो फसल काटी थी, उस काटी हुई फसल को इकट्ठा करने का काम करती है। तो ओटम के कई तरह, ओटम के सीजन में ओटम तरह तरह के कार्य करती है। ओटम प्लेज डिफरेंट रोल व्हेन हर टाइम कम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल शी विनोज ग्रेन, in the second form she reaps the crop, and in the third form she gleans the cut crop। जो फसल काट दी गई है, कट गई है, उसको इकट्ठा करने का काम भी ओटम ही करती है, मतलब सारा काम ओटम में ही होता है। बट शी इज गिवन द फेस ऑफ वुमन, वुमन का उसको रूप दिया गया, विमेन का चेहरा दिया गया है। इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स एंड सम टाइम लाइक ए ग्लीनर Thou does keep steady, steady यानी एकदम निरंतर, बिना डगमगाए हुए। डाई लेडन, लेडन यानी भार से दबा हुआ। हेड अक्रॉस ब्रूक, ब्रूक यानी छोटी नदी, स्मॉल रिवर, स्मॉल रिवर। जब फसल कट जाती है तो औरत क्या करती है, उस फसल को इकट्ठा करके उसके बंडल बांधती हैं और सर के ऊपर रखकर नदी को पार करते हुए चली जाती है। और नदी को पार करते समय वो एकदम अपना सर जो है, जिसके ऊपर फसल की जो कटी हुई फसल बंडल में बंधी हुई पड़ी है, वो बड़ी सावधानी से चलती है, बिना डगमगाए, नहीं तो फसल नीचे गिर जाएगी। इसीलिए तीसरा रूप क्या दिया गया है, ग्लीनर का रूप दिया गया है, जो फसल इकट्ठी करके अपने घर की तरफ जा रही है। और क्या पार करके जा रही है, द ब्रूक, और बाई ए साइडर प्रेस। और कभी कभार, साइडर का मतलब है द जूस दैट इज मेड फ्रॉम एप्पल, द जूस, द प्रिजर्व्ड जूस दैट वी ड्रिंक एंड मेड अप ऑफ apples is called cider juice, and the machine which is used to crush the apples so that the juice can be extracted from the apples, that machine is called cider press। तो cider press जूस निकालने की मशीन है। with patient look, और कई बार जो महिला जिसको ओटम का रूप दिया गया है, वो एक साइडर प्रेस, एक जूस निकालने वाली मशीन के पास बैठी है और उसके अंदर फ्रूट डालती है और उसको मशीन को घुमाकर जूस निकालती है। और विथ पेशेंट लुक, पेशेंट मतलब धैर्यवान होते हुए, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, उस जूस की एक एक बूंद जो मशीन से निकलती है वो देखती है, अंतिम बूंद को भी देखती है। देखते हैं जब जूस पूरा खत्म हो जाता है तो बहुत ही एक एक मुश्किल से एक एक बूंद मशीन से बाहर निकलती है, बट she looks even at the last drop of the juice coming out of the cider press। or by a cider press with patient look thou watchest the last oozing hours by hour। the word ooze that we read even yesterday too, कल भी हमने इसके वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। when the Hopkins says द ऊज ऑफ ऑयल, यानी कि बूंद, तो कहने का मतलब जब ये साइडर प्रेशर का काम, चौथा रूप क्या है, साइडर प्रेशर।
चौथा रूप उसको साइडर प्रेशर का दिया गया है, जूस निकालने वाली महिला का रूप दिया गया है। और जब वो जूस निकालती है तो जूस की अंतिम बूंद को भी वो गौर से धैर्यवान होते हुए देखती है। तो दीज 4 forms are given to autumn. So the questions related to these forms may be asked in your exams too, that which forms were given to autumn and what is the cereal. So the first form is winnower, second is reaper, third is gleaner, and fourth is cider presser. Now we are going to study the third stanza of Ode to Autumn. After reading about the first and second stanza, we are going to study the third stanza. Where are the songs of spring? The poet says, and he asked a question कि where are the songs of spring? Spring means बसंत ऋतु। हम बसंत ऋतु को बहुत ही सुंदर मानते हैं, बहुत ही प्यारी मानते हैं, उसके म्यूजिक को बहुत ही अच्छा मानते हैं। एंड द पोएट सेज वेयर आर द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग? अभी ओटम चल रहा है, माना ओटम ने फसलों को पकाया है, फलों को पकाया है, लेकिन जो गीत हम बसंत में सुनते हैं वो गीत कहाँ हैं? वो तो ओटम में नहीं है। तो फिर क्या करे? वेयर आर दे, वो बड़ी ले रहा है, एकदम कहाँ चले गए? वो ही बिकम्स रिमिनिसेंट, he become very sad when he remember the song which he had heard in the in spring season, which cannot be found in the autumn. But yet in the further line what he says, think not of them, thou hast thy music too. Here the poet becomes the optimist when he says that we should not think about the music of spring, because the autumn has its own music. autumn का अपना संगीत है, इसका अपना separate distinct individual music है, इसका म्यूजिक स्प्रिंग से कम नहीं है। एंड autumn is always related to the sad things, क्योंकि in autumn even the leaves and fruit fall from the tree, and when something is gets fallen from tree, it is considered bad. It is related to the sad feelings because it separate from its body, but yet the music produced in autumn season is also beautiful, because we read even in the Ode to the West Wind, where Shelley says that the west wind produces sad music when it blows through the forest. The autumnal music, autumnal means sad music. So think not of them, thou hast thy music too, while barred clouds bloom the soft dying day. Barred clouds, यहाँ बार्ड क्लाउड्स का मतलब है जब शाम को आकाश के अंदर लंबे लंबे बादल बन जाते हैं, ऐसा लगता है मानो वो सरिये, खिड़की के ऊपर सरिये कैसे होते हैं वैसे आकाश के अंदर बादलों की लाइन पड़ जाती है, उसके निशान पड़ जाते हैं। Therefore he used the word barred clouds bloom. bloom यानी खिलना, यानी कि बादल शाम के टाइम जब सूर्य अस्त होता है तो बादल चारों तरफ फैलने लगते हैं, द सॉफ्ट डाइंग डे, और डाइंग डे, और सूर्य अस्त होता है तो दिन खत्म होता है, दिन की मौत हो जाती है और रात शुरू होते हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी हू, एंड व्हाट द कलर द क्लाउड्स अज्यूम इन द इवनिंग? रेड कलर. व्हेन वी आर around the 5 or 6 p.m. or especially when the sun sets, when we are on the roof and look upward at the sky, we find that the color of the sky is red. The sun is not there in the sky, but yet the light of sun can be seen pervading all around in the sky, and the light of the sun reflects upon the ground, and when the sky is red, the red color can be reflected on the area of the ground. So in the evening time, when the red light fall upon the ground becomes red, and the ground is full of stubble. stubble का मतलब यार जब आप फसल काट देते हो उसके पीछे ठूट बच जाता है छोटा सा, उसको stubble कहते हैं। सारे stubble, सारे ठूट लाल रोशनी में चमकने रखते हैं, क्योंकि आकाश पूरा लाल है, चारों तरफ लालिमा छाई हुई है। stubble plain with rosy hue, रोजी यानी गुलाबी, hue यानी कलर,
Then in a wailful choir the small gnats mourn. Wailful यानी विलाप करते हुए, रोते हुए. कोयर, कोयर का मतलब होता है समूह गीत, समूह में गाया जाने वाला गीत. द स्मॉल नेट, नेट छोटे इंसेक्ट होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं जो हवा में उड़ते हैं. मॉर्न, मॉर्न यानी रोना. इन द ऑटम सीजन देयर आर सो मैनी इंसेक्ट्स कॉल्ड नेट्स flying in the sky, and they are not, single or couple, but they are in a huge crowd in large amounts, and when they make sound, their sound vibrates, and the vibration made by them seem to be a music to our ears, and therefore the poet says that autumn has its own music. When the gnats, insects, fly in the sky, they produce music, and listen to that music. That music is also sweet, and this kind of music cannot be found in spring season. Among the river shallow, shallow पेड़ का नाम है जिसको विलो भी कहा जाता है, and it is very soft, बेंडेबल. ये बहुत ही जल्दी बैंड होता है. जब हवा तेज आती है तो ये बैंड हो जाता है और हवा बंद होते ही वापस सीधा खड़ा हो जाता है. बॉर्न अलोफ्ट, अलोफ्ट यानी ऊंचा हवा में, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज. और ये जो इंसेक्ट हैं ये कहाँ उड़ रहे हैं? पेड़ों के बीच में. कौन से पेड़? सैलो पेड़ों के बीच में उड़ते हैं. और जब ये इंसेक्ट हवा में उड़ते हैं तो जब हवा तेज होती है तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं, और हवा कम होते ही ये जमीन पर आ जाते हैं. तो कहने का मतलब, जब हवा तेज होती है तो इनका म्यूजिक भी तेज हो जाता है हवा तेज होने के कारण, और हवा कम होती है तो उनका म्यूजिक भी धीमा पड़ जाता है. द ब्यूटीफुल, द ब्यूटी attributed to this poem is produced by the poet John Keats. And full grown lambs loud bleat, bleat जो ये भेड़ के बच्चे आवाज करते हैं उसको bleat कहते हैं, आवाज करना. और जो छोटे छोटे, जिसको हम हिंदी में मेमने कहते हैं, भेड़ के छोटे बच्चे मेमने, हिली बॉर्न पर, पहाड़ियों पर जब वो मस्ती में इधर उधर कूदते हैं, घूमते हैं, तो वो भी आवाज करते हैं. तो द पोएट रिक्वेस्ट अस that listen to the music produced by lambs. This is the beautiful music that we can listen or hear only in the autumn season. We cannot get the beauty of this music in spring season that is praised by all mankind. हेज क्रिकेट सिंग, या हेज का मतलब झाड़ी होती है और क्रिकेट छोटे इंसेक्ट होते हैं जिसको हिंदी में झिंगूर कहा जाता है. और वो छोटी छोटी झाड़ियों के अंदर जो झिंगूर होते हैं वो आवाज करते हैं, और उनकी आवाज ऐसा लगता है मानो वो गीत गा रहे हो. दे सिंग. एंड हाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल मीन्स हाई पिच सॉन्ग. जब कोई म्यूजिक की आवाज तेज होती है उसको ट्रेबल कहा, जिसका ऊंचा पिच होता है, जिसकी आवाज ऊंची होती है उसको ट्रेबल कहा गया. सॉफ्ट, लेकिन फिर भी उनका जो आवाज है ऊंचे पिच के बावजूद भी सॉफ्ट है, कानों को अच्छी लगती है, कर्णप्रिय है. मीन्स द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड इन ऑटम सीजन. एंड हु प्रोड्यूस म्यूजिक इन ऑटम सीजन? नेट्स अमंग द रिवर सैलोज. द म्यूजिक becomes high and low with the movement of the wind. The music produced by the lambs, music produced by the hedge cricket, and the music produced by these creatures is so beautiful that we are attracted to this music, and therefore autumn is famous for its music and for its quality of ripening the fruits. The red breast, रेड ब्रेस्ट एक पक्षी होता है जिसका ब्रेस्ट, जिसकी जो छाती होती है लाल रंग की होती है, इसीलिए उसको रेड ब्रेस्ट कहा गया है. विशल, विशल का मतलब सीटी बजाना. फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, तो एक बगीचे के अंदर जब रेड ब्रेस्ट उड़ते हैं तो उनकी आवाज़, जब वो आवाज़ करते ऐसा लगता है विशल बज रही हो. वो विशल भी बड़ी मीठी आवाज़ के रूप में कवि ने उसको मीठी आवाज़ का रूप दिया है. एंड गैदरिंग स्वेलो, स्वेलो चिड़िया होती हैं. ट्विटर, ट्विटर मीन्स चर्पिंग, चर्प करना, आवाज, चहचहाना, आवाज करना.
in the sky, and when we look up in the sky we find that birds are chirping. You know, when the birds are very intelligent creature, because after autumn when the winter comes, because winter is the, you know, जिसको हम हिंदी में शीत ऋतु कहते हैं, वेरी कोल्ड सीजन होती है, और ये पक्षी जब विंटर सीजन आती है, सो बिफोर द विंटर कम्स दे बिगिन टू माइग्रेट फ्रॉम ऑटम टू अनदर वार्म डेज, जहाँ गर्म दिन होते हैं वहाँ वो जाने का योजना बना लेते हैं. तो व्हेन दीज बर्ड्स मूव फ्रॉम द विंटर सीजन टू द ऑटम सीजन, जब विंटर वाले मौसम के दिनों से जब ये ऑटम वाले मौसम की तरफ या गर्म दिनों की ओर जाते हैं, तो वो आवाज़ करते हुए जाते हैं. एंड द म्यूजिक दैट दे प्रोड्यूस इज आल्सो वेरी ब्यूटिफुल. सो स्टूडेंट्स, इन दीज 3 स्टैंजाज वी रेड about the autumn season. In the first stanza we read that how the autumn with the help of sun conspires to make the fruits ripen, whether it is vine लता हो या फिर एप्पल ट्रीज हो, और वेदर गॉर्ड हो और हेजल नट्स हो, सभी को वो फ्रूट से भर देती है. इन द सेकेंड स्टेंजा वी स्टडीड अबाउट द 4 फॉर्म्स गिवन टू ऑटम. द फर्स्ट इज विनोवर, सेकेंड इज reaper, third gleaner, and fourth cider presser. In the third stanza, in the first line he laments that we cannot find the music of spring in autumn season, but then after he becomes optimist and he says that autumn has its own music. Then he enumerates the music produced by many kinds of insects and birds. So this is very beautiful poem, and I hope you got and you understood this poetry, this poem written by John Keats, and still you find any problem, you may contact me. Thank you very much.